Hello, students. Let's continue the play on the face of it. This is the third day of the explanation of the chapter. On the second day, we read that Mr. Lamb tried to motivate Derry by telling him about Beauty and the Beast, the story, which proves that outer beauty is not important, inner beauty is important. Although there is not a story in the story, I told you the story, The Beauty and the Beast, where the monster was changed only because he was liked by the princess for his inner beauty. So, the message is, if you are beautiful inside, if you are beautiful at heart, if you are a good person at heart, no matter how ugly you are. But if you are beautiful outside and ugly at heart, you would not be given so much respect or importance in the society. So, Mr. Lamb tried to motivate Derry by telling this, and Derry asked him why he wanted to tell him this story. He knew what the story want to teach, and he was not motivated by this story. Let us continue. This is the line where we left. There is saying कि मैं चेंज नहीं होऊंगा. It was the monster who was changed from ugly to beautiful, handsome, but it would not occur in his life. Now Mr. Lamb tells him something in that way. No, you won't. In that way, इस तरीके से तुम तो चेंज नहीं होगे. वो मॉन्स्टर बदल गया था, उसकी वो कहानियों में हुआ था ऐसा. That monster was changed only because he was loved by the princess. But here it is not possible. Derry को change, Derry की लाइफ में ऐसा हो जाए, it is not possible. And no one will kiss me ever. Only my mother, and she kisses me on the other side of my face. It shows that she also didn't like to see that side of his face. And I don't like my mother to kiss me. She does it because she has to. She's mother. She has to do this. She has to show her love. She has to show her affection for her son. That's why she does it. Why should I like that? I don't care if anybody ever kisses me. So he has become so pessimistic that even when people treat him with love, he finds fault in it. He just tries to find the reason why they don't give him love on that side of his face also, where which is burnt. But do you care if you never kiss them? What? Girls, pretty girls, long hair and large eyes, people you love. Do you care that you get the chance to do that? Would you let me? Who would let me? No one. Who can tell? कौन कह सकता है इस बारे में? I won't ever look different. Means I would not be changed. When I am as old as you, I'll look the same. I'll still only have half a face. So the face is full, but it is in his thinking that his face is half. Although it is burnt, but it is full face. But because of him being optimistic, he is not thinking anything positive for himself. But Mr. Lamb is saying there can be anything in his life. It may be that he also has a bright future, no matter how burnt his face is. So you will, but the world won't.
मीन्स यू विल, मिस डैरी ने कहा कि भाई मैं चेंज नहीं हूँगा, मैं अगर चेंज नहीं हूँगा तो हाउ विल पीपल लव मी, कैसे लोग मुझे अफेक्शन देंगे, कैसे लोग मुझसे प्यार से पेश आएंगे जब मेरा फेस ही नहीं बदलेगा। उनको मैं भद्दा लगूंगा तो वो किस तरह से पेश आएंगे मेरे साथ, नहीं आएंगे, तो मैं बदलूंगा नहीं। तो अब मिस लैम कहता है कि ऐसा ही दिखोगे, डेफिनेटली बूढ़े हो जाओगे तब भी ऐसा ही रहेगा तुम्हारा फेस, बट द वर्ल्ड वॉन्ट, पर वर्ल्ड ऐसा नहीं होगा। वर्ल्ड वुड सर्टेनली हैव चेंज्ड। द वर्ल्ड हैज़ गोट अ होल फेस एंड द वर्ल्ड्स देयर टू बी लुक्ड एट। डू यू थिंक दिस इज़ द वर्ल्ड, दिस ओल्ड गार्डन? क्या तुम्हें लगता है बस यही संसार है, ये पुराना सा गार्डन? व्हेन आई एम हेयर, नॉट द ओनली वन बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर। सो मिस्टर लैम जस्ट वॉन्ट्स टू टेल हिम कि जब मैं यहाँ होता हूँ तो मेरे लिए यही संसार है, जैसा और कहीं हो सकता है वैसा ही ये मेरे लिए संसार है, ये मेरे लिए कंप्लीट है। डज योर लेग हर्ट यू? टिन डजेंट हर्ट बॉय, टिन में कभी दर्द नहीं होता। When it came off, did it? जब ये अलग हो गई थी आपकी लेग, तब हुआ था? Certainly, बिल्कुल हुआ था। And now, I mean where the tin stops, at the top। भाई अब होता है जहाँ पर टिन स्टॉप करती है, जहाँ पर आपके फेस से अटैच होती है टिन। नाउ एंड देन, कभी कभी इन वेट वेदर, इट डजेंट सिग्निफाई। Oh, that is something else they all say. Look at all those people who are in pain and brave and never cry and never complain and don't feel sorry for themselves. सो डेरी को खुद ही याद आ गया कि लोग उसको किस तरह से मोटिवेट करते हैं कि भाई उन लोगों की तरफ देखो, तुम्हारा तो सिर्फ फेस ही जला हुआ है। ऐसे लोगों को देखो जो बहुत ही दर्द में जीते हैं और कभी कंप्लेन नहीं करते, और उनको कभी अपने ऊपर दुख भी नहीं होता। दे डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स, बट यू आर always feeling sorry for yourself. So they people want to motivate him, and who can be the people? His family members, his mother, his father, his relatives, his friends, his neighbors. Whenever he would be in passive mode, they would try to motivate him। तो इस तरह की बातें कह के वो उसको मोटिवेट करते होंगे, और वो अपने आप ही यहाँ पर ये बात बता रहा है मिस्टर लैम को कि किस तरह से लोग उसको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। आई हैवंट सेड इट, मैंने तो नहीं कहा तुम्हें ये। एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वॉज ऑफ देन यू, अरे उनके बारे में, और ये भी कहते हैं मुझे लोग, डेरी बता रहा है कि और लोग मुझे ये भी कहते हैं कि उन लोगों के बारे में सोचो जो तुमसे भी बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं, मीन्स उनके साथ तुमसे भी बुरा हुआ है। थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड और बीन डेफ और हैव टू लिव इन अ व्हील चेयर to be a daft in your head and dribble means a person who is speaking something but saliva is falling from his mouth। मतलब ऐसे लोग जो बोलते हैं तो उनके मुंह से लार गिरती है, पागलों की जैसे एक्टिविटी लगती है उनकी। और गूंगे हो सकते हो तुम, बहरे हो सकते हो, व्हील चेयर। तो लोग उसको ये कह के मोटिवेट करते हैं कि भाई अभी तो फेस ही जला है, अगर तुम्हें पूरी ज़िंदगी व्हील चेयर पर बितानी पड़ती तो क्या करते तुम अगर बहरे होते तो क्या करते, तुम अगर अंधे होते तो क्या करते। उनके बारे में सोचो जो ऐसे हैं, जो अंधे हैं, जो बहरे हैं, जो गूंगे हैं, जो पूरी ज़िंदगी व्हील चेयर पर बिता रहे हैं, जो पागल हैं। एंड दैट इज़ ऑल ट्रू, और ये सच भी है, मिस्टर लैम कहता है। एंड यू नो इट, और तुम जानते हो ये, दैट तुमसे भी बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं लोग। वाई डोंट यू थिंक अबाउट दैम? वाई डोंट यू गेट मोटिवेशन फ्रॉम दैम? They are living life miserable than you, still they are motivated, they are not having any kind of complaint, they are not feeling sorry for themselves. Why are you doing this? It won't make my face change. He has again dragged the matter to this point कि भाई ऐसा सोचने से मेरा फेस चेंज हो जाएगा क्या? He is desperately thinking about his face. He is having an overwhelmed desire to get his face changed. Do you know, one day a woman went by me in the street. I was at a bus stop and she was with another woman, and she looked at me and she said, whispered,
हल्की आवाज़ में कहा उसने। डेरी को किसी औरत ने देखा और हल्की आवाज़ में उसने कहा, क्या कहा? ओनली आई हर्ड हर, केवल मैंने ही सुना जो उसने कहा। क्या कहा उसने? शी सेड, लुक एट दैट, दैट इज़ अ टेरिबल थिंग, दैट्स फेस ओनली अ मदर कुड लव। इतना भयानक फेस है ये। एक ऐसा फेस है, उसकी माँ ही उसे प्यार कर सकती है, और कोई इंसान ऐसा मिलेगा नहीं जो उसके फेस को प्यार करे। सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन, इसका मतलब तुम जब जो भी कुछ सुनते हो उस पर विश्वास करते हो। तुमने सुना उस औरत को ये बात कहते हुए और तुमने विश्वास कर लिया, तो इसका मतलब जो भी तुम्हें सुनाई देता उस पर विश्वास कर लेते हो क्या? इट वॉज क्रूअल, ये निर्दयता थी उसने जो ये बात बोली। इट वॉज नॉट टू बी सैड, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मे बी नॉट मीन्ट एज सच, जस्ट समथिंग सैड बिटवीन देम। हो सकता है तुम्हारे बारे में बात ही ना हो, वो आपस में कोई बात कर रहे हो, तुम्हारे बारे में किसी ने बोला ही ना हो। ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड, केवल मैंने सुना इसे। सो वट डज इट मीन? तुमने सुना तो इसका मतलब तुम्हारे बारे में ही था क्या? हो सकता है उनके आपस में कोई बात चल रही हो। समटाइम्स इट हैपन्स कि लोग बात करें और हमें लगे, कभी कभी सुनी हुई बातें भी झूठ हो जाती हैं। बिकॉज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है लाइफ में तो आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम के बारे में ही डिस्कशन चल रहा है और थोड़ा सा लिंक भी मिल सकता है आपको, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट दे आर टॉकिंग अबाउट यू। ऐसा हो सकता है कि आपको ही लग रहा है, बट दे आर टॉकिंग अबाउट देम सेल्स, दे आर टॉकिंग अबाउट अदर पीपल। इट मे बी दैट दे आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट यू। एंड इज दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड ऑफ एनी वन से इन योर लाइफ? अच्छा तो ठीक है, क्या तुमने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ इतना ही सुना है क्या? क्या यही बात सुनी है अपने बारे में? ओ नो, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो नाउ यू कीप योर ईयर्स शट। इसका मतलब है तुमने इतना बुरा सुन लिया अपने बारे में, अपनी इतनी बुराई सुन ली है कि तुम अब अपने कान बंद रखते हो। यू आर पिकुलियर, स्ट्रेंज, यू आर स्ट्रेंज, यू से पिकुलियर थिंग्स, यू आस्क क्वेश्चंस आई डोंट अंडरस्टैंड। ऐसी ऐसी बातें पूछते हो तुम, मेरे समझ में नहीं आती, बड़े अजीब आदमी हो तुम। देयर इज डायरेक्टली कमेंटिंग ऑन हिज बिहेवियर। आई लाइक टू टॉक, हैव कंपनी, you don't have to answer questions, you don't have to stop here at all, the gate is open. So he has bluntly said कि भाई मुझे तो पसंद है बातें करना, मुझे तो क्वेश्चन पूछना पसंद है और मुझे लोगों की कंपनी पसंद है। तुम्हें अगर पसंद नहीं तो तुम जा सकते हो, दरवाज़ा खुला है। यस बट, हाँ खुला है दरवाज़ा, बट आई हैव अ हाइव ऑफ bees behind those trees over there. Now Miss Lam has changed the topic. Some hear bees and they say bees buzz. भाई लोग मधुमक्खियों को सुनते और कहते हैं कि वो भिन भिनाती हैं, बट व्हेन यू लिसन टू bees for a long while they hum, and hum means sing. I hear them singing my bees. मैं अपनी मक्खियों को भिन भिनाते हुए, गुनगुनाते हुए सुनता हूँ। गुनगुनाने का मतलब गाना होता है। सो यहाँ से एक बात पता लग रही है, जब किसी इंसान को बहुत ही ज़्यादा अकेलेपन में जीना पड़े तो डेफिनेटली ऐसी बात हो सकती है। वो अकेला है तो उसको मधुमक्खियों में ही साथ दिखाई दे रहा है, मधुमक्खियाँ ही उसकी साथी बन गई, इसलिए उनकी बीज जो बज करती हैं वो उसको हम करती हुई सुनाई दे रही है। इट मीन्स, और एक बात और पता लग रही है, ही इज़ कम्प्लीटली ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। पैसिमिज्म है नहीं, लोगों को भिन भिनाहट लगती है और उसको गुनगुनाहट लगती है। तो इट मीन्स ही इज़ कम्प्लीटली ऑप्टिमिस्टिक। और एक बात और क्लियर हो रही है, उसका और कोई साथी नहीं है, तो मधुमक्खियों को उसने साथी बना लिया है। और इसीलिए जब किसी को साथी बना लिया जाता है, किसी को अपना कंपेनियन मान लिया जाता है, तो उसके अंदर अच्छाई ही नज़र आती है। बट आई लाइक इट हेयर, वो बट जो डेरी ने अभी बोला था, ये वाला यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है वो, कि मैं जा सकता हूँ। आई लाइक इट हियर, और मुझे ये जगह पसंद है। आई केम इन बिकॉज आई लाइक्ड इट व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल। मैं अंदर इसीलिए आया था कि मुझे गार्डन पसंद आया था, जब मैंने वॉल के ऊपर से देखा था और मुझे पसंद आया था। दैट्स वाई आई केम इन। इफ़ यू हैड सीन मी you would not have come in, you had not come would not have come in.
अगर तुम मुझे देख लेते ना तो अंदर नहीं आते। मिस लैम इज़ ट्राइंग टू टेल हिम कि भाई अगर डैरी देख लेता कि वहाँ पर मिस लैम है तो वो नहीं आता अंदर। डैरी नो, मिस लैम नो, व्हाट डज दिस नो मीन? तो डैरी कह रहा है कि नहीं आ जाता मैं, मिस लैम कह रहा है कि नहीं आते। डैरी इट वुड हैव बीन ट्रेस पासिंग, तो ट्रेस पासिंग होती वो। ट्रेस पासिंग मीन्स when someone enters into someone's property without any permission and with a wrong intention, ill intention, then it is called trespassing. घुसपैठ बोलते हैं उसको। ah that's not why I don't like being near people। भाई वो ट्रेस पासिंग होती है और ऐसा मिसलैम कह रहा है कि ऐसा तो नहीं होता। जेरी का अब समझाने का मन किया है और वो कह रहा है मैं इसलिए नहीं आता, आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल, क्योंकि मैं लोगों के पास जाना पसंद नहीं करता। व्हेन दे स्टेयर, व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, मीन्स जब मुझे पता लगता है कि वो घूर के देख रहे हैं मेरे फेस की तरफ, जब मुझे लगता है कि वो डर गए हैं मुझे देख करके, सो आई जस्ट कीप माई सेल्फ अवे फ्रॉम पीपल, तो इसलिए मैं नहीं आता। यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन आर रूम एंड नेवर लीव इट, तो फिर तो तुम अपने आप को लॉक कर लो एक कमरे के अंदर और कभी कमरे से बाहर निकलो ही मत। अगर ये सोचते हो तो लोगों के पास नहीं जाना चाहते हो तो यू शुड लॉक योर सेल्फ। देयर वॉज अ मैन हु डिड दैट, एक बार एक आदमी ने किया था ऐसा। ही वॉज अफ्रेड, यू सी, ऑफ एवरीथिंग, वो हर एक चीज़ से डरता था। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, हर एक चीज़ से। अ बस माइट रन ओवर हिम, कहीं उसे कोई बस कुचल ना दे, और अ मैन माइट ब्रीद डेडली जम्स ऑन टू हिम, कि भाई कोई इंसान भयानक जम्स ना छोड़ दे उसके ऊपर सांस लेते हुए। और अ डंकी माइट किक हिम टू डेथ, और लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, और ही माइट लव अ गर्ल एंड गर्ल वुड लीव हिम, and he might slip on a banana skin and fall, and people who saw him would laugh their heads off. So he went into this room। इतने सारे डेंजर्स दिमाग में लिए हुए था वो कि भाई बाहर जाऊंगा तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो अपने कमरे में चला गया। एंड लॉक्ड द डोर एंड गोट इन टू हिज बेड एंड स्टेड देयर, डेरी फॉर a while, then what? A picture fell off the wall on to his head and killed him. Derry laughs a lot. He was trying to save himself by locking himself into a room, but there also he got the accident. A picture fell on his face and he was killed. You see, but you still say peculiar things। देखा तुमने कैसे मर गया वो। If you are trying to hide yourself from people, you can't do that। भाई जो होना है वो होना है। सो वाई आर यू ट्राइंग टू स्टॉप एवरीथिंग? तुम्हारे बाहर जाने से, लोगों के पास जाने से लोगों को डर लगता है, लगने दो। यू शुड डू व्हाट यू वांट। नाउ डेरी इज सेइंग कि भाई तुम बड़ी अजीब बात करते हो, ये स्टोरी जो तुमने सुनाई है ये भी बड़ी अजीब है। मिस्टर लैम कहता है पिकुलियर टू सम, कुछ लोगों को अजीब लगती है। नाउ डेरी आस्क्स व्हाट डू यू डू ऑल डे, क्या करते हो तुम पूरे दिन? सिट इन द सन, रीड बुक्स। आह, यू थॉट इट वॉज एन एम्प्टी हाउस बट इनसाइड इट इज़ फुल। तुमने सोचा कि मेरा घर खाली है पर अंदर से भरा हुआ है। बुक्स एंड अदर थिंग्स, फुल, बुक्स से भरा हुआ है, फुल है। सो हेयर ऑल्सो वी हैव गॉट वन मोर इंस्टेंस दैट shows that Mr. Lamb was alone, completely alone. No one came to talk with him। एक तो हमें एग्जाम्पल मिला दैट बीज डोंट बज, दे हम। अकेला है वो इसलिए मधुमक्खियों में साथ ढूंढ लिया उसने, क्योंकि और तो कोई आता ही नहीं है उससे बात करने के लिए, और अब मधुमक्खियों की भिन भिनाहट भी उसे गुनगुनाहट नज़र आती है। दूसरी चीज़, उसने अपने साथी किस में ढूंढ लिए हैं? बुक्स में। बुक्स बहुत ज़्यादा हैं उसके पास, तो
जनरली बुक्स पढ़ करके वो अपने अकेलेपन को दूर करता है। तो यहाँ से एक इंस्टेंस और मिला है। बट देर आर नॉट एनी कर्टेन्स एट द विंडोज़, पर तुम्हारे घर की खिड़कियों पे पर्दे तो नहीं हैं। I think, my dear students, it is enough for today, otherwise the video will be long, and we should continue the remaining part tomorrow. And I think that what we have read today is clear to you, and if you still have any doubt, you can comment. Let us meet tomorrow. Till then, my dear students, take care. Bye.